Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the foundation of individual behavior under your subject of OB, that is organizational behavior. I have already made videos related to what is OB, scope and nature, what is the significance of OB. If you want to check those videos, I will add the link in the description box. You can check those videos as well. For today, we will only study the foundation of individual behavior. What does individual behavior mean? So, let us begin. In an organization, not everyone acts the same way. People think, feel, react differently. ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के वीडियो में कि हर एक इंसान जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो बहुत ही अलग होता है क्योंकि वो डिफरेंटली सोचता है, डिफरेंटली फील करता है और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है एक सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोग होंगे, आप उनको एक सिचुएशन दोगे तो पांचों का नजरिया अलग होगा किसी भी चीज को लेकर। These differences come from personal and environmental factors. Foundation of individual behavior आप ऐसे समझो कि it means those factors जो कि influence करते हैं उस इंसान को उस तरीके से feel या behave करने के लिए। Understood? Every organization is made up of individuals and understanding their behavior is the first step towards managing them effectively. अगर एज अ मैनेजर मुझे किसी को मैनेज करना है, उससे काम करवाना है अपनी टीम के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो मुझे ये बहुत जरूरी है कि मैं ये समझूं कि वो इंडिविजुअल क्या सोचता है, कैसे काम करता है, वो किस चीज पे कैसा रिएक्ट करता है और क्या सोचता है। इसके लिए मुझे उसके बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है, और उसका बिहेवियर मैं कैसे जानूंगी? थ्रू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे, उन्हीं को समझेंगे डिस्क्रिप्टिवली। इसी को हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ओबी के एग्जाम में आपको ये अलग से क्वेश्चन नहीं आता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एक्सप्लेन कीजिए। ये अलोंग विद अ फ्यू क्वेश्चंस कि ओबी एक्सप्लेन करो व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड कैन यू एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। उस केस में आप इसको डिस्क्रिप्टिवली लिख सकते हो। ठीक है, the very first thing that we will see is the biographical characteristics. Biographical characteristics क्या होती है? These are basic personal details about any person, like what is the age of the person, gender क्या है उसका, whether he is married or unmarried, कितने टाइम से वो काम कर रहा है। These things can affect how a person behaves or work in a job. For example, older people, if you will see that older people, they have more experience and they are looking for more stable job. Whereas younger people are usually more active and they are open to learning new things. So as a manager, it will be my responsibility to see and check whether the younger person, if I'm pointing him, is he willing to be stable in my organization or not. Similarly, gender also plays an important role. See, there is a huge difference between how they react and balance their work life and personal life. So, as a manager, it is very important for me to check the biographical characteristics of a person if I am hiring that person for my organization to achieve the organizational goal. Understood? Then, second point is ability. Ability refers to a person's capacity to perform various tasks. एक इंसान की कैपेसिटी किसी भी काम को करने के लिए कैसी है, ये चीज भी बहुत अहमियत रखती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो एबिलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, देन उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी एबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज ऑल अबाउट ब्रेन, कि एक इंसान इंटेलेक्चुअली कैसा है, दिमाग कैसा है उस इंसान का, क्या वो थिंकिंग कर पा रहा है, प्रॉपरली रीजनिंग कर पा रहा है जहां जहां जरूरत है, या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसे सॉल्व कर पा रहा है, या अगर मान लो कि उसने कोई ऐसा उसको प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उसको बहुत ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, दिमाग लगाने वाला काम है, क्या वो चीज कर पाएगा? अगर हाँ तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी है। सिमिलरली देर आर पीपल जहाँ देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे फिजिकल एबिलिटी की बहुत जरूरत होती है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी। सो जब भी एक मैनेजर हायर करता है तो एबिलिटी चेक करता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में हम देखते हैं कि दिस इज हाउ वेल अ पर्सन कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
right? But in physical ability, you see the body skills. This is how well a person can use their body strength, their energy, and their coordination while working. If person's ability matches the job for which the manager is hiring, then they will do well. And if they will do well, they will feel happier, and ultimately the goal of the organization will be achieved. Okay? Moving on, we are going to talk about what is personality. Personality is also part of foundation of individual behavior. Personality is the unique combination of emotional and behavioral traits that determine how a person reacts to any situation. Now, what is personality? Personality means the special way person thinks, feels, and behaves in an organizational setup or maybe outside the organization as well. It is what makes a person different. Every person has a different personality. For example, some people are very calm, some like to talk a lot, some are very serious, some are funny. So these differences come from their personality. So personality, in short, is a unique combination of a person's thoughts, feelings, and actions that make them who they actually are. Understood? Then the next foundation of individual behavior is the perception. Perception, simple language में ऐसे समझो, perception means देखने का नजरिया. ठीक है? Perception is the process through which individuals interpret and give meaning to their environment. वही मैंने कहा, देखने का नजरिया किसी भी चीज को. It can differ from reality because people see things based on their experiences, attitudes, and interests. Key concepts related to perception are selective perception, halo effect and stereotyping. इसको डिस्क्रिप्टिवली आप आगे जाके ओबी में पढ़ोगे. सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ. परसेप्शन मीन्स हाउ एज एन इंडिविजुअल आई सी थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड मी. So two people can see the same thing, but उसको understand वो differently कर सकते हैं based on their past experiences या उनका mood कैसा है या उनके beliefs किसी चीज के लिए कैसे हैं. ठीक है? यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी आपको बता देती हूँ. आगे चल के डिस्क्रिप्टिवली आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे. सो अभी बस ऐसे समझ लो. सिलेक्टिव परसेप्शन मीन्स we notice only what we want to see and ignore the rest. For example, I am liking someone, so I am ignoring that person's mistakes. Yes, this is selective perception. मैं selectively किसी चीज के प्रति मेरा क्या नजरिया है उसको कहते हैं selective perception. Halo effect means you are judging a person based on one good thing about them. For example, if someone is looking good, so we think, oh my God, this is such a dashing personality. He's so smart. Understood. So this is the halo effect that you are just judging a person based on one single good thing. Understood. When stereotyping is judging someone based on their group or background instead of knowing them personally. For example, as an adult, I will think that all teenagers are careless. So this is what? This is judging the teenagers based on the background or the group they belong to. Okay? Why perception matters in individual behavior? Because if a manager understands perception, what they can do is they can avoid misunderstandings and unfair judgments that might happen at work. ठीक है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये. अगर आप इसको अच्छे से समझ के अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. सी आई नो ओबी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हो. लेकिन अगर आप उसको एकदम डेप्थ से पढ़ना स्टार्ट करोगे बेसिक फाउंडेशन से तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी. वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जैसे कि परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, वैल्यूज, ये सब चीजें आपको बहुत अलग लगेंगी, नई लगेंगी. लेकिन जब आप उसको समझोगे ना और उसको अपने वर्ड्स में लिख के अपने नोट्स बनाना चालू करोगे उसके बाद आप देखना कि आपको लगेगा कि अरे ये सब तो कुछ है भी नहीं. ठीक है? नाउ मूव ऑन करते हैं एटीट्यूड्स की तरफ विच इज दी another फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड आर लर्नड प्री टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली towards something or someone. Simple language में attitude means how a person thinks, feels and acts towards something or someone. It can be negative also, it can be positive also. But it is learned from our experiences.
नाउ एटीट्यूड के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अभी तो ये आपको आगे चल के बहुत डिस्क्रिप्टिवली भी पढ़ना पड़ेगा ओबी के अंदर। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कॉग्निटिव मीन्स बिलीफ सिस्टम, व्हाट अ पर्सन थिंक्स। अफेक्टिव मीन्स कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, व्हाट फीलिंग्स यू आर गेटिंग, व्हाट अ पर्सन फील्स। एंड बिहेवियरल एटीट्यूड, which is the action, what person does. Simple, व्हाट पर्सन थिंक्स, क्या सोचता है, क्या फील करता है और कैसा एक्शन देता है। ये तीन चीजें आपको एटीट्यूड के अंदर पढ़नी होंगी आगे चल के। अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में व्हाट अ पर्सन थिंक्स, व्हाट अ पर्सन फील्स एंड हाउ ही or she reacts in an organizational setup. So these are the three major types of attitudes that are important in the organization. ठीक है, सिंपल समझ के attitude means how a person thinks, feels and acts towards something or someone. It can be positive also, it can be negative also. तीन एटीट्यूड्स जो कंपनी में मैटर करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हाउ हैप्पी अ पर्सन इज विद देयर जॉब। मैं अगर कोई काम, सपोज आई एम टीचिंग, तो मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे पता चलेगा, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ अपने काम को, अपनी टीचिंग को लेके, उससे मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन पता चलेगा। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, हाउ मच अ पर्सन केयर्स अबाउट एंड कनेक्ट्स विद देयर जॉब, मैं कितना ज्यादा अपनी जॉब में इन्वॉल्व हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत पसंद है अपनी जॉब, पढ़ाना बहुत पसंद है, तो आप देखोगे कि सुबह शाम में अपना वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज माई जॉब इन्वॉल्वमेंट, हाउ मच आई एम केयरिंग अबाउट टीचिंग एंड हाउ मच इट कनेक्ट्स मी विद माई जॉब। So this is called job involvement. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, दैट इज द लॉयल्टी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच लॉयल आई एम टुवर्ड्स माय कंपनी दैट। ठीक है, मूविंग ऑन टू वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं, दीज रिप्रेजेंट्स डीपली हेल्ड बिलीव्स, डीपली, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द पेन। Yes, values represent deeply held beliefs about what is right or wrong, important or unimportant. They guide decision making and they influence the attitudes and behavior. तो values are our personal beliefs जो कि हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। They guide our choices and our behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वैल्यूज दो तरह की आप पढ़ोगे, फर्स्ट इज टर्मिनल वैल्यू, देन अनदर वन इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। Terminal values are the final goals that we want in our life, and instrumental values are the ways or behaviors we use to reach those goals. अंडरस्टूड। तो जब एक एम्प्लॉय की वैल्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे वो काम कर रहा है उसकी वैल्यूज से मैच करती हैं, तो दे फील मोटिवेटेड, happy and they get comfortable while working in that organization. ठीक है, तो values play a very important role in building a person's or an individual's behavior. Understood? Then moving on to the next point, that is learning. Learning क्या है, it is relatively permanent change in behavior due to experience. In organizations, employees learn through training, feedback and observation. मेजर लर्निंग थ्योरीज आपकी तीन दी हुई है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, लर्निंग क्या है, इट इज अ चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर, किसी भी इंसान के बिहेवियर में चेंज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज नॉट टेम्परेरी, इट विल स्टे विद यू फॉर एवर। किसी भी काम को, जब आप किसी जॉब में काम करते हो, ठीक है, कोई भी काम आप करते हो, तो वो आप कैसे सीखते हो, वहां पे लर्निंग कैसे होती है। या तो कोई आपको ट्रेनिंग देगा कि ये काम ऐसे होना है, या फिर आपने वो काम कर दिया, अब आपको फीडबैक मिलेगा कि वो काम सही हुआ है या गलत हुआ है, या उस काम को कैसे करना है। या फिर आप पहले लोगों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये काम ऐसे करना था। अंडरस्टूड। तो तीन तरह की लर्निंग्स होती हैं यहाँ पे जो आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड थर्ड इज सोशल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग बाय एसोसिएशन, कि you are associating yourself with something and then you are learning a particular task. Then second is operant learning, which means learning by reward and punishment. यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको इसके लिए प्रेज किया जाएगा, तो आप फिर से करना चाहोगे उस काम को। वहीं अगर आपको किसी चीज के लिए डांट पड़ेगी या कोई आपको बोलेगा कि यू हैव नॉट डन इट करेक्टली, तो आपका मन ही नहीं करेगा वो काम करने का। ठीक है, तो दिस इज व्हाट
operant conditioning. Then last one is social learning, which is learning by others, learning by watching others. So you learn how to do a task by seeing what your co-worker is doing. सो इन्हीं सब आइडियाज को यूज करके मैनेजर्स इनकरेज करते हैं कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को और इम्प्रूव करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को. सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल बातें हैं, बस समझ लो और अपने वर्ड्स में आपको लिखना है. देन वी हैव motivation. Motivation is the internal drive that directs a person's behavior towards achieving goal. अब मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन एक इनर फोर्स है जो कि आपको कोई भी काम करने के लिए कहती है कि हाँ अब ये काम करना चाहिए. मोटिवेशन से ही आप डिसाइड करते हो कि आपको किसी काम में कितनी एनर्जी देनी है, कितना एफर्ट डालना है और आपका इंटरेस्ट कैसा रहेगा उस काम को करने के लिए. भी आपकी तीन मेन थ्योरीज आपको पढ़नी होंगी. फर्स्ट इज मैस्लो थ्योरी, देन हर्सबर्ग एंड देन मैक्लेलैंड की थ्योरी है. बहुत सिंपल थ्योरीज हैं, आप आराम से इसको समझ के कर सकते हो. मैस्लो की थ्योरी में उन्होंने बताया है कि पीपल हैव 5 लेवल्स ऑफ नीड, बेसिक से लेके हायर. ठीक है, तो बेसिक क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर, लव, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ग्रोथ. इन्होंने दो और ऐड कर दिए. ठीक है. व्हेन वन पर्सन इज सेटिस्फाइड, सॉरी, व्हेन वन नीड्स गेट सेटिस्फाइड, एक आदमी दूसरी नीड की तरफ अग्रसर होता है. द नेक्स्ट वन मोटिवेट्स देम. ठीक है. देन वी हैव हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. इसमें क्या होता है? मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स. मोटिवेटर्स लोगों को हैप्पी बनाते हैं. मोटिवेटर्स क्या होगा? जैसे कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उसको अचीवमेंट मिल गया या रिकग्निशन दे दिया आपने. ओ आई एम सॉरी. उसके लिए आपको अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट दे दिया या रिकग्निशन दे दिया तो वो क्या होता है? वो मोटिवेट हो जाता है उस काम को करने के लिए और ज्यादा खुश हो जाता है. देन वी हैव हाइजीन फैक्टर्स. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया है, सैलरी या वर्किंग कंडीशंस. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और वहां पे आपको बढ़िया मस्त सैलरी मिल रही है तो फिर आपका मन करेगा ना कि हाँ मैं ये वाला काम करूंगा, इसमें मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मेरा घर चल जाएगा. वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं तो आप मन लगा के काम करोगे. और वहीं पे अगर एक डर्टी एनवायरनमेंट में आपको बैठा दिया जाए कंप्यूटर लेके तो शायद आपका काम करने का मन नहीं करेगा. ठीक है. Moving on to emotions and moods. Emotions are intense feelings directed at someone or something, while moods are less intense but longer lasting emotional states. Managing emotions at work is important for maintaining, vital means important for maintaining productivity and teamwork. Emotional intelligence, it is the ability to recognize, understand, and manage one's own emotions and those of others. High emotional intelligence improves leadership, communication and conflict management. Simple words में आप समझो कि emotions जो होते हैं, they are strong feelings that you have towards someone or something. जैसे कि आपको किसी को देख के गुस्सा आ गया, आपको किसी को देख के डर लगता है, किसी को देख के आप खुश हो जाते हो, यू आर एक्साइटेड. ये अचानक से आते हैं एंड वो इमोशंस ज्यादा देर के लिए रहते भी नहीं है. ठीक है. वेयर एज मूड्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. जैसे कि आपको आज अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पूरा दिन आप डल डल फील करोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ हैप्पी मूड, आप अच्छा काम करोगे, यू विल वर्क बेटर. अगर आप बैड मूड में हो, आपका फोकस में भी ना रहे काम करने में. ठीक है. सो एट वर्क इमोशंस एंड मूड्स आल्सो अफेक्ट पीपल एंड हाउ दे कम्युनिकेट और मेक डिसीजंस और मे बी परफॉर्म ड्यूरिंग द डे. दैट्स व्हाई इट इज important for a manager to understand the emotions and moods of an individual so that he can make him do the work that the manager wants. Understood? Then comes the emotional intelligence. अभी मैंने इसमें पढ़ा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स स्मार्ट अबाउट इमोशंस, नोइंग हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर ओन फीलिंग्स एंड हैंडल अदर्स इमोशंस टू. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसका इमोशनल आई बहुत ज्यादा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका ज्यादा होगा, वो चाहे वर्क प्रेशर कितना भी हो वो उस वर्क प्रेशर में भी काम कर लेगा. वेर एज जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस कम होगा वो शायद, अगर उसका घर पे मूड सही नहीं था तो वो ऑफिस में आके भी काम ठीक से ना कर पाए. सो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ताकि अपने एम्प्लॉयज से वो काम करवा पाए. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी वर्क प्लेस पर
वर्क प्लेस फैक्टर्स जो होते हैं वो भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करते हैं। These include leadership style, organizational culture, work environment and policies, reward system and job design. अब देखो, not only personality, जैसे कि अभी मैंने बोला कि नॉट ओनली पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद भी अफेक्ट करती है लोगों को। कैसे? अब देखो, एक लीडरशिप स्टाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर सपोर्टिव और काइंड है, वहां के एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, और वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका लीडर स्ट्रिक्ट है या अनफेयर है, वहां के एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से वो स्ट्रेस और नेगेटिविटी में काम करेंगे। तो ये दो तरह के लीडरशिप स्टाइल हो गए, जहाँ पे एक लीडर बहुत अच्छा है, जहाँ पे एक लीडर बहुत अनफेयर है। तो वहां पे लोग किस तरीके से काम करेंगे, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह से काम करेंगे, ये तो वही जाने। ठीक है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आता है। दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी। जैसे एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, वैसे ही एक कंपनी की भी पर्सनालिटी होती है। वो कैसे पता लगेगी, उसकी वैल्यूज क्या है, किस तरीके से लोगों से काम करवाती है। जहाँ पे ओपन कल्चर होगा, वहां पे लोगों में ट्रस्ट होता है, टीम वर्क लोग करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ठीक है। उसी तरीके से वर्क एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज कैसी है? सेफ, क्लीन एंड फेयर वर्क प्लेस विल हेल्प पीपल फोकस्ड टू बी फोकस will help people to be focused on their work and they will feel respected. इसी तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोगों के काम की अहम उनको वैल्यू दी जाती है, उनके काम की अहमियत है, वहां पे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए, एज कम्पेयर टू अ प्लेस जहाँ पे कोई रिकॉग्निशन या कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाउंडेशन बिकॉज दे एक्सप्लेन हाउ द वर्क प्लेस एनवायरमेंट विल इन्फ्लुएंस द पर्सन बिहेवियर। ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। इवन इससे नहीं है, अगर आपको इन जनरल भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या मैनेजमेंट में, बिजनेस स्टडीज में कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।